Hello students, welcome to the Battle of RC session second. So guys, in today's session, I'm going to take an actual CAT 2021 passage. This passage happens to be a tricky one. So there was this one request that some students had that so we wanted to solve some tricky ones, okay, the tricky passages. And if you have any specific requests, you can also put it down in the chat. Okay, so before I start this session, there is one thing I would like to just talk about very quickly. So this question is asked by a lot of people, a lot of students. That what are the tricks? What are the ways, shortcuts, so that I can solve the passage quickly? सर ऐसा क्या हम लोग करें कि भाई passage जल्दी से solve हो जाए ना? ठीक है, speed reading सर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? Okay, so guys, understand one thing that CAT as an exam is very different from the other exams. Okay, a lot of exams that happen in India, CAT is a very different exam. Now CAT tests you on a level of comprehension that is unheard of. The understanding part of the passage is more important than the speed or than your ability to do something with a shortcut or a trick. So in order to improve your skills on CAT level comprehension, the most important thing is that you should be able to comprehend, you should be able to understand what you are reading, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेंगे. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अ लॉट ऑफ दोज trick based approaches, because when it comes to accuracy, when it comes to CAT level passages, what would always be important is your ability to understand or comprehend. ठीक है, okay, so चलिए start करते हैं. So guys, this is you already know my profile. So I'm a serial CAT cracker with 99 plus on the VRC section. I've been teaching for the last 12 years and I'm your verbal mentor. Okay, so passage आ गया आपकी screen पे. How will we solve this passage? So this time what I'm going to do is I will show you this passage slide by slide. Okay, हर slide पे मैं 10 seconds रुकूंगा. Those of you who are watching this video can pause the video if you want to solve this passage on your own. Okay, so this is the first slide, second slide, third one. Okay, and here comes the first question. You can pause the video. Second question, third question, fourth question. Now let's start the discussion. Okay, so approach remains the same as I always say, because comprehension is important. You need to paraphrase. Paraphrasing improves your retention skills, it improves your short-term memory, and it's very important to make an overall understanding of the passage. So start karte hain. For the Maya of the classic period who lived in southern Mexico and Central America between 250 and 900 CE, the category of persons was not coincident with human beings as it is for us. That is, human beings were persons but other non-human entities could be persons too. तो यार ये तो बड़ी नई बात हो गई कि जैसे हम बोलते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो पर्सन होते हैं, माया के अकॉर्डिंग नॉन ह्यूमन भी पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, नॉन ह्यूमन भी पर्सन हो सकते हैं. तो नई बात पता चली हमें. इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द स्लिपेज ऑफ कैटेगरीज बिटवीन ह्यूमंस एंड पर्संस, आई एग्जामिन्ड अ वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एंशिएंट माया इमेजेस फाउंड पेंटेड ऑन सीन ऑन सिरेमिक वेसल्स. तो ऑथर ने एक्सप्लोर की कुछ ऐसी पेंटिंग्स, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीजें जो इमेजेस, ठीक है, जो उसको मिली सिरेमिक वेसल्स पेंट की हुई. I sought out instances in which faces, a combination of eyes, nose and mouth, are shown on inanimate objects. So obviously he got hold of some of these inanimate objects. Inanimate का by the way meaning होता है lifeless. तो जैसे सपोज करो कि कोई पॉट है, तो ऑथर को जो वो इमेजेस मिली ना, वो ऐसी इमेजेस थी जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पेंटेड थी. फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ पॉट, और पॉट के ऊपर उसको आईज मिली, नोज मिली, माउथ मिला. ठीक है, तो उसको ये समझ में आ गया कि भाई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ये लोग एनिमेट कंसिडर करके, यानी कि लिविंग कंसिडर करके, पर्सन कंसिडर करके चल रहे हैं. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, नॉन ह्यूमन जो है उसको भी पर्सन हम मानते थे, तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग समथिंग नॉन ह्यूमन एज पर्सन? अब वो आंसर होने वाला है नेक्स्ट लाइन में. कंसिडर माय आईफोन व्हिच नीड्स टू बी फेड विद इलेक्ट्रिसिटी एवरी नाइट, swaddled, swaddled का मतलब रैप, लपेट के रखना, swaddled in a protective bumper and enjoys communicating with other fellow phone beings. Does it have personhood, if at all? Because it is connected to me, drawing this resource from me as an owner or source. For the Maya who did have
plenty of other communicating objects if not smartphone? The answer was no. So the question is कि क्या हम आईफोन को सिर्फ इसलिए पर्सन मान लें क्योंकि उसका कनेक्शन जो था वो ऑथर के साथ था, ऑथर बीइंग ह्यूमन? ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. दैट मीन्स कि कनेक्शन टू द ह्यूमंस इज नॉट एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग समथिंग एज अ person. Non-human personhood were not tethered. It was not connected to specific humans and they did not derive that personhood from connection with the human. Very important. Humans के साथ connection एक essential requirement नहीं है personhood के लिए. That means even without any connection with humans, you can still be categorized as a person, even the non-living entities. It's a profoundly democratizing way of understanding the world. देखो, democratizing way का मतलब there is no categorization. Humans are not important than non-humans. तो अगर माया का अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटाइजिंग था, इसका मतलब उनके लिए सब बराबर थे. पर्सन कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, नॉन ह्यूमन भी हो सकता है. Okay, so this is the paraphrasing. As per Mayan, non-human entities could be person too. Yes, non-human person was not to be tethered with humans to derive personhood. This is the very important message कि अगर किसी non-human entity को मुझे पर्सन क्लासिफाई करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका ह्यूमन के साथ कनेक्शन हो. आगे चलते हैं. Humans are not more important. We are just one of the many kinds of person who inhabit this world. Humans non-human से ज्यादा important नहीं होते. अब ये जो चीज है ना, यही आपकी democratizing potential रखती है. This is something that makes the whole thing democratic. That means everyone is equal. Everyone means living, non-living सब बराबर है. कोई भी person हो सकता है. The Maya saw personhood is activated by experiencing certain bodily needs and through participation in certain social activities. देखो यार, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको पर्सनहुड का क्राइटेरिया मिलता है कि एक तो बॉडीली नीड्स होनी चाहिए और सर्टेन सोशल कम्युनिटी में एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए. अब बॉडीली नीड्स क्या क्या हो गई? हंगर, टायर्डनेस, फिजिकल क्लोजनेस वगैरह वगैरह. कम्युनिटी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हो सकती हैं? कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, रिचुअल, ऑब्जर्वेंस. नाउ सम ऑफ यू मे फाइंड इट very odd that how can non-living entities have communities. ठीक है, लेकिन होती हैं उनकी भी, है ना, देखेंगे हम आगे. या how non-living entities can have requirements or bodily needs. Okay, तो वो भी हम आगे देखेंगे. But the idea is that these are the two criteria for considering something as a person. In the images I examined, we see, for instance, faced objects cradled in a human arms. We also see them speaking to the humans. These core elements of personhood are both turned inwards. Okay. तो core elements दो ही हैं, they are turned inwards, and the body or self of a person requires an outward what a community expects of a person who are a part of it, underlying the reciprocal nature of community membership. तो वही चीज बोल रहा है कि जिस भी चीज को पर्सन मानोगे तो उसका एक रेसिप्रोकल नेचर होना चाहिए कम्युनिटी के साथ और वो कम्युनिटी का पार्ट होने चाहिए. Personhood was a non-binary preposition for the Maya. Now this is again the next important message. उनके हिसाब से पर्सनहुड एक नॉन बाइनरी प्रपोजिशन थी. Entities were able to be person while also being something else. The faced objects I looked at indicate that they continue to be functional. जो उनका काम होता है वो फंक्शन भी करते रहते हैं, doing what objects do, and apart from that they are also persons. Okay, so let me explain. ये पैराग्राफ पता है क्या कह रहा है? माया के अकॉर्डिंग पर्सन का क्राइटेरिया नॉन बाइनरी है. नॉन बाइनरी का मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई स्टोन का टूल है. ठीक है, अब वो स्टोन का टूल का काम क्या है भाई? आप ऑब्वियसली उससे कोई चीज पत्थर तोड़ोगे वगैरह वगैरह कुछ भी करोगे तो वो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट हो गया. तो स्टोन का टूल अपना फंक्शनल एस्पेक्ट भी रिटेन करेगा और उसको हम पर्सन भी मान लेंगे. ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी. हम लोग नॉर्मली ऐसा नहीं सोचते. हमारा यानी कि ह्यूमंस का जो यूजुअल परसेप्शन होता है चीजों के बारे में वो होता है बाइनरी. बाइनरी का मतलब कि या तो मैं किसी चीज को पर्सन मानता हूं या तो मैं उसको नॉन पर्सन मानता हूं. लेकिन यहां पे नॉन बाइनरी प्रपोजिशन है. नॉन बाइनरी प्रपोजिशन का मतलब कि वो चीज अपना खुद का रोल भी रिटेन कर रही है. तो अगर कोई स्टोन का टूल है तो उसका फंक्शन क्या है भाई? उससे आप कुछ तोड़ोगे वोड़ोगे, कुछ है ना, कुछ काम करोगे तो फंक्शनल एस्पेक्ट भी चल रहा है, साथ में वो पर्सन भी है. तो यू कैन बी अ पर्सन एज वेल एज यू कैन डू योर ओन थिंग, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट नॉन बाइनरी इज रेफरिंग टू. सो पैराफ्रेजिंग करते हैं गाइस. Experiencing bodily needs and community participation are criteria for personhood. Personhood is a non-binary preposition and objects retain their functional aspect. तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं वो अपना फंक्शनल एस्पेक्ट भी रिटेन करता है, पर्सन भी होता है. दोनों ही चीजें एक साथ चलती है. लास्ट पैराग्राफ. Furthermore, the Maya visually depicted many objects in ways that indicated material category to which they belong. तो material category भी रिटेन करते हैं
Okay, drawings of the stone implement show that the person tool is still made of stone. देखो मटेरियल कैटेगरी भी चल रही है, स्टोन का टूल स्टोन का ही रहेगा, पर्सन भी बनेगा और फंक्शनल एस्पेक्ट भी चलता रहेगा. One additional complexity, the incense burner, which would have been made of clay and decorated with spiky peaks representing a sacred ceiba tree found in the region, is categorized as a person but also as a tree. अब ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें देखो एक नई एंगल आ गई, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था कि कोई भी नॉन ह्यूमन एंटिटी अपन लेते थे तो उसके दो एस्पेक्ट होते थे, फंक्शनल एस्पेक्ट होता था और एक आपका पर्सन वाला एस्पेक्ट होता था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट में भी दो चीजें आ गई. फंक्शनल के अंदर भी इस केस में यू हैव टू थिंग्स. ओके, लाइक यू हैव द इंसेंस बर्नर, तो एक तो उसका इंसेंस बर्नर वाला फंक्शन हो गया, तो इसको तो अपन कहते हैं फंक्शन 1. और इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ट्री वाला भी है. ठीक है, तो वो ट्री वाला भी एस्पेक्ट आ गया, तो इसको कह देते हैं फंक्शन 2. तो अभी क्या है, यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट में दो चीजें आ गई, राइट. और पर्सन तो खैर है ही, क्योंकि हम इसको पर्सन मानते हैं, क्योंकि पूरा चीज जो है ये नॉन बाइनरी है. नॉन बाइनरी का मतलब पर्सन नॉन पर्सन वाला बाइनरी एग्जिस्ट ही नहीं करता. Okay, so with these examples, we are challenged to discard the person-non-person binary that constitutes a basic ontological outlook. The porousness of boundary, porousness का मतलब कोई चीज जो permeable होती है, जिसके थ्रू चीजें पास ऑन हो सकती है. तो अगर मैं चीज कह रहा हूं कि नॉन बाइनरी है, नॉन बाइनरी का मतलब कोई भी चीज बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन नॉन पर्सन की कैटेगरी में लाए नहीं करती. जो चीज पर्सन है वो नॉन पर्सन भी हो सकती है, जो नॉन पर्सन है वो पर्सन भी हो सकती है, और दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है. इसका मतलब मायंस वर मोर अबाउट अनकैटेगराइजेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड. दे वर लिविंग विद दिस पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स आर अनकैटेगराइजेबल. अनकैटेगराइजेबल का मतलब वही नॉन बाइनरी. Okay, so paraphrasing 3, the person as per Maya categorization retains his material category as well as functional aspect, which reinforces the non-binary or अनकैटेगराइजेबल एस्पेक्ट ऑफ द माया वर्ल्ड, क्योंकि इनके हिसाब से कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती नहीं है. जो चीज नॉन पर्सन है और पर्सन है वो दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं. सो इफ आई लुक एट द एंटायर पैसेज वेरी क्विकली, पैराफ्रेजिंग 1 फर्स्ट में क्या डिस्कस हुआ था कि पर्सनहुड के लिए ह्यूमन कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. कोई चीज जो नॉन ह्यूमन है वो भी पर्सन की तरह कंसिडर हो सकती है. ठीक है, आगे फिर हमने पढ़ा कि पर्सनहुड अगर ह्यूमन कनेक्शन से नहीं आता तो किस वजह से आता है, बॉडीली नीड्स की वजह से और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से. दैट मींस दीज आर द टू क्राइटेरिया that we need in order to consider something as person. Okay, and this reinforces, and this paragraph also talks about the non-binary preposition. Non-binary preposition means if you have a certain entity, it continues to do its function. That means functional aspect चलता रहेगा और उसके साथ साथ में human आपका functional aspect के साथ में आपका personhood वाला aspect भी आ जाएगा. So these two things can exist together. That means they are non-binary prepositions. एंड देन लास्ट पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने बात की इस चीज की कि जो आपके पास कैटेगराइजेशन होता है उसमें, है ना, जब हम कहते हैं कि भाई अनकैटेगराइज्ड है या नॉन बाइनरी है, तो इसका मतलब दोनों एस्पेक्ट यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट और आपका पर्सन एस्पेक्ट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. इन लोगों ने यहाँ पे एक इंसेंस बर्नर की बात की, उसके केस में कहा कि इसके फंक्शनल एस्पेक्ट भी दो हो गए, ट्री भी है और इंसेंस बर्नर भी है. एंड नाउ दिस इज अ थर्ड कैटेगरी दैट वी आर डीलिंग विद, बट स्टिल इट इज नॉन बाइनरी. नॉन बाइनरी का मतलब बोथ द थिंग्स आर एग्जिस्टिंग टुगेदर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन आई विल सॉल्व इट. चलो सॉल्व करता हूं मैं. Which one of the following is true about the classic Maya would invalidate the purpose of the iPhone example in the passage? Invalidate का मतलब होता है weaken. iPhone का एग्जाम्पल क्या था? iPhone का एग्जाम्पल ये था कि iPhone के थ्रू ऑथर ने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्सनहुड. ह्यूमन कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्सनहुड. ठीक है, ये चीज हमने बात की थी. तो अगर मुझे इसको वीकन करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि ह्यूमन कनेक्शन इज एसेंशियल फॉर पर्सनहुड. ह्यूमन कनेक्शन इज एसेंशियल फॉर पर्सनहुड. दैट इज डिपिक्टेड इन ए ऑप्शन. द पर्सनहुड ऑफ इंसेंस बर्नर एंड द स्टोन चॉपर वाज अ फंक्शन ऑफ यूजफुलनेस टू ह्यूमंस. दैट मींस दिस ऑप्शन विल प्रूव that human connection is very very important for personhood. बाकी ऑप्शन ह्यूमन कनेक्शन की बात नहीं कर रहे. Let me rule them out one by one. Classic Maya songs represent both human and non-living entities, so this is not talking about human connection as being essential for personhood. आगे चलते हैं. The clay incense border with spiky appliques was categorized only as a person and not as a tree by classic Maya. Again, this option is also not
पुटिंग emphasis on human connection for personhood, so इसको भी मैंने रूल आउट कर दिया. थर्ड वाले पे आते हैं. अनलाइक मॉडर्न सोसाइटीज इक्विप्ड विद मोबाइल फोन, द क्लासिक माया डिड नॉट हैव एनी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स. यार ह्यूमन कनेक्शन की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, इसको तो आप वैसे रूल आउट कर दो, राइट. आई होप ये समझ में आया होगा. सो दी आईफोन एग्जांपल वाज बेसिकली अबाउट एम्फसाइजिंग दैट ह्यूमन कनेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑथर ने आईफोन की बात करके बोला था कि यार आईफोन को मैं बोल सकता हूँ क्या पर्सन, एंड द आंसर वाज नो. ओके, बिकॉज हिज take was कि iPhone is connected to me, so it can become a person. Okay, but the answer was no. That means, and then you went on to explain that human connection is not a requirement for personhood. Okay, so A option is going to weaken that because A option emphasizes that human connection is important for personhood. तो ये basically आपके original intention को, original argument को weaken कर देगा. Moving ahead. Okay, so you can try this question, guys. You can pause the video, try this question. Second question क्या कह रहा है? Which one of the following, if true, would not undermine the democratizing potential of the classic Maya worldview? Very easy question. Democratizing potential का मतलब humans are not more important. Human, non-human सब बराबर हैं. ह्यूमन कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिर्फ पर्सनहुड के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं. पर्सनहुड के लिए हमें चाहिए एक तो आपका कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेशन और एक आपका बॉडीली नीड्स. ठीक है, तो ह्यूमन कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, बॉडीली नीड्स होनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ये दो चीज अगर आपको मिल गई तो आपको पर्सन क्लासिफाई कर दिया जाएगा. ह्यूमन कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, ह्यूमन कनेक्शन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट. ओके, ऑप्शन देखते हैं. They believe that animals like cats and dogs that live in proximity means closeness to humans have a more clearly articulated personhood. कैट्स और डॉग्स की पर्सनहुड सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रही है कि उनके साथ ह्यूमंस की क्लोजनेस है, तो ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस मिल गई, मतलब डेमोक्रेटाइजिंग जो नेचर है वो अंडरमाइन हो गया. अब एक चीज समझना, यहां पे आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए जो नॉट अंडरमाइन है. नॉट अंडरमाइन आंसर होगा. नॉट अंडरमाइन अगर आंसर होगा तो इसका मतलब जो तीन ऑप्शंस हैं वो अंडरमाइन करेंगे. सो 3 ऑप्शंस विल अंडरमाइन. ठीक है, अब अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, and I will rule those 3 options out. So A option humans को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल को अंडरमाइन कर रहा है ना. ठीक है, क्योंकि अगर ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस दे दी तो वो डेमोक्रेटिक वाला फंडा तो फिर कहां रहा, हट गया ना. ठीक है, आगे चलते हैं. They understood the stone implement an incense burner in a purely human form. भाई ये तो पता ही चल रहा है कि ह्यूमंस को ही इंपॉर्टेंस मिल रही है. अगर किसी चीज को मैं प्योरली ह्यूमन फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूं, दैट मीन्स इट्स undermining the human like the democratizing potential. Okay, humans को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, यानी कि डेमोक्रेटिक पोटेंशियल अंडरमाइन हो गया. B option is also ruled out. C पे आते हैं. While they believed in personhood of objects and plants, they did not believe in the personhood of rivers and animals. भाई क्यों आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? रिवर्स और एनिमल्स को भी आप बराबरी का दर्जा दो, क्योंकि डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि every entity is equal when it comes to personhood as long as it satisfies the basic criteria of what a person can be. It does not matter it's like it's a river or it's a animal or it's a non-living entity. It does not matter. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये पर्सन कभी हो नहीं सकते, तो this will also undermine the democratizing potential, so I will rule this one out also. D option says they depicted their human healers with physical attributes of a local medicinal plant. Okay, so more importance is being given to local plants because humans also have those attributes of plants. तो ये वाला जो option है ये हमारा सही हो गया, because in this case humans are not given more importance, and in fact human healers have the attributes of local medicinal plants. तो medicinal plants को in fact थोड़ा सा ज्यादा importance यहाँ दिख रही है हमें, तो ये वाला आपका हो जाएगा आंसर, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट विल नॉट अंडरमाइन. बाकी के जो तीनों ऑप्शन थे उन्होंने क्या कर दिया था, वीकन कर दिया था. तो दिस इज नॉट गोइंग टू वीकन, राइट, दिस इज नॉट गोइंग टू वीकन द डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल. ओके ओके, सो दैट इज हाउ वी डू दी सेकंड क्वेश्चन. चलते हैं थर्ड वाले पे. मूविंग अहेड. ओके, अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड नाउ लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू. On the basis of the passage, which one of the following worldviews can be inferred to be closest to the Maya classic Maya? अब देखिए माया के कंटेक्स्ट में बातें तो वही हैं कि भाई डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल है, ह्यूमंस आर नॉट दी ओनली पर्सन्स. ओके, नॉन ह्यूमंस कैन ऑल्सो बी पर्सन्स. नॉन ह्यूमंस अगर पर्सन होते हैं तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट हमें होती है.
पर्सनहुड के लिए पर्सनहुड की रिक्वायरमेंट्स में लिख देता हूं यहाँ पे वापस से। दो चीजें आपको चाहिए, आपको चाहिए एक तो बॉडीली नीड्स और एक आपको चाहिए क्या, एक आपको चाहिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, है ना। तो आप किसी कम्युनिटी के पार्ट होने चाहिए, और ये दो चीजें अगर नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी हैं तो आप पर्सन में क्लासीफाई हो जाओगे। ऑप्शन देखते हैं। A tribe that perceives its hunting weapons as sacred person artifact because of its significance to its survival। किसका सर्वाइवल? ह्यूमन का सर्वाइवल। ह्यूमन का सर्वाइवल होने की वजह से वीपन को मैंने पर्सन मान लिया, मतलब ह्यूमंस हैव बीन गिवन मोर इंपॉर्टेंस। ह्यूमंस हैव बीन गिवन मोर इंपॉर्टेंस, दैट मींस दिस इज रूल्ड आउट बिकॉज दिस इज नॉट इन सिंक विद मायास कंसेप्शन। ओके, बी ऑप्शन पे आते हैं। अ फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी दैट परसीव्स रोबोट्स टू बी पर्सन्स एज वेल एज रोबोट्स बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटी टू ह्यूमंस। तो भाई रोबोट्स को आपने पर्सन्स इसलिए माना क्योंकि वो ह्यूमंस के जैसे लगते हैं, दिखते हैं, यानी कि ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस मिल रही है, ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस मिल रही है, दैट मींस दिस इज रूल्ड आउट एज वेल। सी ऑप्शन, अ ट्राइब दैट परसीव्स प्लांट्स एज पर्सन प्लांट्स बिकॉज दे फॉर्म अ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब कम्युनिटी आ गई, कम्युनिटी आ गई, ठीक है। एंड मार्क्ड बाय नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मार्क्ड बाय नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब बॉडीली नीड्स आ गई। तो यार लग तो रहा है यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड, सो दिस लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन। ओके, बाकी लेकिन डी भी देखते हैं। अ ट्राइब दैट परसीव्स इट्स यूटेंसिल्स एज पर्सन यूटेंसिल्स इन लाइट ऑफ देयर फंक्शनैलिटी एंड बॉडीली नीड्स। ओके, तो यार बॉडीली नीड्स तो यहाँ पे भी आ रही है लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी नहीं आ रही, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज मिसिंग आउट ऑन द कम्युनिटी पार्ट, सो वी विल रूल दिस वन आउट एज वेल। सी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, यू कैन पॉज इट एंड लेट मी सॉल्व दिस नाउ। Which one of the following best explains the additional complexity that the example of incense burner illustrates regarding the personhood for the classic Maya? Incense burner वाले केस के अंदर आपके पास दो फंक्शनल एस्पेक्ट आ गए थे, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको एक थर्ड कैटेगरी बना दिया। और मुझे चीज बताओ कि जो इंसेंस बर्नर वाला जो एग्जाम्पल था उसने क्या नॉन बाइनरी अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज किया है या नॉन बाइनरी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट किया है? ऑब्वियसली सपोर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि पूरे पैसेज में नॉन बाइनरी अंडरस्टैंडिंग के आइडिया को ही आपने सेल किया है माया के कंटेक्स्ट में। तो इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस मच, ओके, यू कैन रूल आउट बी एंड सी ऑप्शन बिकॉज बी ऑप्शन सेज द एग्जांपल कॉम्प्लिकेट्स द नॉन बाइनरी अंडरस्टैंडिंग। नो, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटिंग, इट्स सपोर्टिंग। Okay, and second is porosity of the divine and profane, like divine, profane. Okay, profane is something that is abusive or it goes against the religious beliefs, and divinity you already know, so there's no discussion of divinity and profanity. Okay, rule this one out. आगे चलो, C option, the example provides an exception to the non-binary understanding। क्या ऐसा है कि non-binary understanding को आपने exception दे दिया, आपने बोला कि नहीं binary understanding भी होती है कभी कभी। exception का मतलब non-binary understanding does not apply। is there an exception? No, the entire discussion only talks about non-binary understanding of the world in the eyes of the Maya। ठीक है, तो ये सी और बी ऑप्शन तो आपके यहीं पे रूल आउट हो गए। अब मेरे पास ए और डी ऑप्शन बचते हैं। लेट मी रीड द ए ऑप्शन। The example adds a new layer of non-binary understanding of personhood by bringing in the third category। Yes, it's a third category that shares a dissimilar relationship with the previous two। And third category इसमें भी mentioned है, new layer of non-binary bringing a third category shares a similar relationship with the previous two। Okay, so let me go back to the passage। Okay, so this time I can see why we call it third category, because ये जो incense burner है वो incense burner तो है ही, और incense burner होने के साथ साथ वो ट्री भी है, ठीक है। और ये जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, हम जो पुरानी वाली कैटेगरीज में जो फंक्शनल एस्पेक्ट देखा था, तो एक फंक्शनल एस्पेक्ट था, ठीक है, कोई स्टोन टूल है तो उसका फंक्शन तो एक ही है ना, स्टोन टूल वाला, और फिर वो पर्सन भी था। यहां पे डिफरेंट क्या हुआ, एंड दैट इज व्हाट इज डिफरेंट इज कि भाई यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट ही दो हो गए और पर्सनहुड वाला एस्पेक्ट तो है ही। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हालांकि इसने थर्ड कैटेगरी बना दी और एक नई कैटेगरी बन गई, बट क्या ये पुराने मैसेज को ही आगे बढ़ा रहा है कि नॉन बाइनरी preposition is something that is always possible, and we can always, like, you know, we can always have that coexistence of functional and person aspect in the same thing। ये क्या उसी मैसेज को आगे बढ़ा रहा है या ये उस मैसेज को डाइल्यूट करके कोई नई बात बोल रहा है? तो यू रियलाइज कि यार ये कैटेगरी तो नई बन गई लेकिन मैसेज वही है। इट्स वेरी सिमिलर in what it's trying to tell us in the form of its essential message to you as an audience। So if you see, though the category is different but the message
that it's trying to tell us, and the relationship that it has is the same. Okay, relationship same kaise? Still we have functional, still we have person, and both functional and person exist at the same time. Okay, and that is your like non-binary understanding or non-uncategorizability. So I would not go in for dissimilar one, I would go in for similar relationship. Okay, क्योंकि relationship तो are essentially same ही है, message तो same ही है passage का. Okay, that you have non-binary understanding when it comes to the coexistence of functional aspect as well as your person aspect. Okay, so that was the last question, and with that we are done with all questions. Okay, so guys, these are the CAT 2023 results of MBA Pathshala. And those of you who are planning to do their preparation in a well organized, systematic manner, so this is one option that you can look at. So batch is starting from 27th of May, और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है. So you have sessions, you have recorded sessions, okay, you have the mock test, you also have the OMATs का preparation, you also have the physical booklets that would be delivered to you at your home address. Okay, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके पास आपको मिलेंगी, और ये ओमैट्स को भी कवर करता है. तो 31 मार्च 2025 तक इसकी वैलिडिटी है. इफ यू वांट टू एक्चुअली हैव a deeper look into this batch, you can always go and find a specific video that we have put out explaining the features of this batch, so you can look at that. Okay, so that is it for today's session guys. I'm going to see you in the next session. Bye bye.